सो अगर इसकी शुरुआत करें, कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो जो इसका एस्टेब्लिशमेंट था इस ग्रुपिंग का, बिम्स्टेक का, दैट वाज डन ऑन जून ऑफ 6 1997. If you talk about the organizational structure, so पहला है chairmanship, so that rotates alphabetically rotate करता है. Alright, so 1997 से लेके अभी तक there has been only a 6 summit level meeting. Ensure that there is seamless connectivity in the group. एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी होगी इन द रीजन, फ्रैगमेंटेशन उतना कम होता जाएगा. दैट इज वाई देर इज सो मच फोकस ऑन कनेक्टिविटी. Hello everyone, so I welcome you all in this new video. So in today's videos, we are going to talk about a very important topic, that is BIMSTEC grouping. All right. Often आप देखोगे कि this term is in the news most of the time, throughout the year ये term या ये grouping news में रहती है. So in this video, we are going to cover the BIMSTEC in a 360 degree or a holistic fashion. Evolving from evolution, brief history, the what it stands for, and then the India's relations with BIMSTEC, or India's use of this BIMSTEC grouping. All right. So again, I welcome you all in this lecture. So let us begin. So first thing is that BIMSTEC stand for the Bay of Bengal Initiatives for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. तो काफी बड़ा एक नाम है ये. And it comprises of 7 countries. Only थोड़ी सी brief history एक बार देख लेंगे BIMSTEC से related. All right. So let us see. So basically it is a regional organization, एक regional grouping है, and that too of 7 members, including India. All right. So it is a regional grouping of 7 members, and this is this grouping is mostly working for the growth of economics, regional cooperation, political stability in the region, and so on and so forth. So basically it is a regional organization of 7 members countries to foster economic cooperation, technical partnership, and mutual development among the countries. All right. And these countries are located in and around the Bay of Bengal region. All right. तो दैट इज द आइडिया. सो अगर इसकी शुरुआत करें, कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो जो इसका एस्टेब्लिशमेंट था इस ग्रुपिंग का, बिम्स्टेक का, दैट वाज डन ऑन June of 6 1997. All right. And it was done via Bangkok Declaration. So that is the one thing. So 1997 में this group was formed. जब ये फॉर्म किया था originally when it was formed, तो it comprises of Bangladesh, India, श्रीलंका एंड थाईलैंड. तो ये 4 कंट्री मिलके इनिशियली स्टार्ट किए थे दिस ग्रुप को, एंड एट दैट टाइम इट वाज कॉल्ड एज बिस्ट, BISTEC. सो वो इनके नाम से आ रहा था. देन आफ्टर 1997, उसी समय थोड़ा सा लेट 1997, दैट इज दिसंबर में, देयर वाज इंक्लूजन ऑफ म्यांमार. ऑलराइट, देयर वाज इंक्लूजन ऑफ म्यांमार. तो इस नाम में MB इंक्लूड हो गया. एंड देन इन 2004, ऑलराइट, 2 न्यू मेंबर्स वर एडेड, दैट इज नेपाल एंड भूटान. एंड उसके बाद से द प्रॉपर नेम हैज कम, दैट इज BIMSTEC. So 2004 में आफ्टर द एडिशन ऑफ 2 न्यू मेंबर्स, BIMSTEC नेम हैज कम. तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर. ऑलराइट, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर. सो देयर आर टोटल 7 कंट्रीज इन द ग्रुपिंग्स. एक चीज ध्यान रखेंगे कि these countries in the BIMSTEC, they comprises of from South Asia plus Southeast Asia. All right, Southeast Asia. All right. So जो थाईलैंड एंड म्यांमार है, थाईलैंड एंड म्यांमार,
All right, they belong to Southeast Asia, and South Asia, rest all 5 countries, they are part of South Asia country. So BIMSTEC is acting as a bridge between South Asia and Southeast Asia. तो ये ध्यान में रखेंगे. Another important thing which is there is the headquarters or the secretariat की बात करें तो that is in ढाका, बांग्लादेश. Alright, एक ये important है. Another crucial factor अगर objective की बात करते हैं तो that is what the idea. So it is the regional groupings where the countries have come together and they are aspiring for economic development, social progress, and in order to have a peace and security and stability in the Bay of Bengal region. So that is one of the core objectives of this grouping. All right, core objectives of this grouping. BIMSTEC charter की बात करें, so even though the group was made in 1997, all right, 1997 में ये grouping start हो गई थी, जो formally 2004 में it has got into BIMSTEC proper, इस प्रॉपर सेप आ गया था. बट स्टिल जब आप बोलेंगे कि जो ऑफिशियल चार्टर है, हाउ द ग्रुप विल गवर्न इटसेल्फ, ऑलराइट, जो ऑफिशियल चार्टर है दैट हैज ओनली कम इन द लास्ट समिट. अभी लेटेस्ट समिट वाज 6th summit. ऑलराइट, we'll talk about it. The 5th summit was there, alright, in 2022. वहां पे the member countries have officially came out with the BIMSTEC charter. All right, so charter basically means how the membership will be governed, how the BIMSTEC grouping will be governed. All right, so एक legal stamp मिल जाता है कि okay, this is the grouping. Now they are able to formally interact with the other groupings. ठीक है, तो that is what the idea. तो BIMSTEC charter, एक चीज ध्यान रखेंगे, it has come very late. All right, it has come very late. All right. Then if you talk about the organizational structure, so पहला है chairmanship, so that rotates alphabetically rotate करता है. All right, तो जिसका नाम पहले वो उसी तरीके से chairmanship rotate करती रहती है. Another crucial aspect is permanent secretariat, तो that is in Dhaka, Bangladesh. This we have seen. क्या mechanism है? तो at the top level we have summit, all right, the BIMSTEC summit which happens where the head of the states, head of the government, all right, they meet and decides the policy and takes the policy decisions. तो वो summit level meeting होती है. Then we also have ministerial meeting जहां पे foreign ministers of the 7 countries meet and they try to take the decisions, they try to observe ki how the path will go. And another is senior officials meeting, and that is the meeting of the foreign secretaries of the 7 countries. So ये एक तरीके का थोड़ा सा organizational structure है हमारा. Alright, moving forward, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिम्स्टेक के बारे में विच यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट इट इज सेक्टर बेस्ड ग्रुपिंग. सेक्टर बेस्ड ग्रुपिंग. ऑलराइट, दिस इज वन थिंग विच डिफरेंशिएट बिम्स्टेक फ्रॉम सार्क एंड एशियान बिकॉज इट इज अ सेक्टर बेस्ड ग्रुपिंग. ऑलराइट, सो क्या किया है, the member countries had divided different sectors. All right, security एक sector हो गया, people to people contact एक sector हो गया, trade and investment एक sector हो गया, and this has been given to different countries. All right, different member countries who is leading in that sector. For example, जैसे if you talk about India, तो India is a leader in security. All right, security sector जो है that is under the leadership of India. इसका जो सब components हैं that is counter terrorism and transnational crime, disaster management and energy security. तो remember that there are 7 priority areas or 7 sectors, one each under the
7 members. So जैसे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें, इट इज अंडर द लीडरशिप ऑफ बांग्लादेश. इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की बात करें, इट इज अंडर द लीडरशिप ऑफ भूटान. पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात करें, इट इज अंडर द लीडरशिप ऑफ नेपाल. सो ऑन एंड सो फोर्थ. एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी म्यांमार में है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन श्रीलंका के अंदर है. एंड कनेक्टिविटी इज विद द थाईलैंड. तो ये सेक्टर बेस्ड ग्रुपिंग है. Every country is leading that sectors and usually are responsible for growth in that sector to achieve the targets. So yeah, this is one thing which you have to keep in mind. All right. So moving on, कि India is specific. All right. What is the significance of BIMSTEC to India? All right. So how India is utilizing this organization to achieve its goals. तो एक जो सबसे important चीज है which you have to keep in mind that कि BIMSTEC was formed in 1997. 2004 में भी ये ऑफिशियल पूरा जो all the members have come and officially इसका नाम BIMSTEC हो गया था. Alright, so formed in 1997. 2004 में BIMSTEC हो गया था, प्रॉपर BIMSTEC बन गया था. But even then the group was not that much active, or you can say that India was not that much active in the group. और एक dormant थी कि हाँ ठीक है, that grouping is there, because earlier the most of the things was happening in SAARC and ASEAN. Alright, तो ये एक dormant group type से था. But what happened is that in the SAARC, alright, जो शार्क में जो डिसीजन मेकिंग थी, दैट बिकेम डिफिकल्ट. क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो सार्क में इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ वर मेंबर्स एंड बोथ वर ट्राइंग टू फाइट ईच अदर. ऑलराइट, बोथ वर ट्राइंग टू डिफीट ईच अदर. तो किसी भी बात पे कंसेंसस या किसी भी बात पे सहमति सार्क में नहीं बन पा रही थी. ऑलराइट, सार्क में नहीं बन पा रही थी. तो व्हाट हैपेंड इन 2016, उरी अटैक टुक प्लेस. अक्टूबर में 2016 में उरी टेररिस्ट अटैक टुक प्लेस. उसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट हैज यूजुअली डिसाइडेड, जो उनका प्लान ऑफ एक्शन था कि ओके विल ट्राई टू मेक द सार्क एज ए डिफंक्ट इंस्टीट्यूशन. एंड अब हमारा जो सारा एनर्जी है, हमारी सारी जो क्षमता है, दैट वी विल यूटिलाइज इन बिम्स्टेक, बिकॉज वहां पे पाकिस्तान नहीं है. ऑलराइट, सो स्पेशली आफ्टर उरी अटैक 2016 के बाद से बिम्स्टेक्स में बहुत सी चीजें होने लगी हैं. सो मच सो दैट जब सेकेंड टर्म था द मोदी गवर्नमेंट, तो लीडर्स ऑफ द बिम्स्टेक कंट्रीज वर इनवाइटेड इन देयर oath taking ceremony of the prime minister. So these are the things. So basically BIMSTEC is being projected as alternative to SAARC, because यहाँ पे Pakistan is not there, so India Pakistan friction is not there, so India may be able to drive the cooperation within the group and may be able to achieve its goals. तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि इट इज बीइंग प्रोजेक्टेड एज ए ऑल्टरनेटिव टू सार्क. ऑलराइट, सो आफ्टर 2016, आफ्टर उरी अटैक, दिस ग्रुप में काफी कुछ चीजें चलने लगी हैं. तो दैट इज वन थिंग व्हिच यू कीप टू माइंड. अनदर क्रूशियल एस्पेक्ट इज दैट दिस ग्रुप इज वेरी मच देयर टू counterbalance the rising influence of China, especially in the Bay of Bengal. अगर आप अभी देखो तो China is becoming very assertive. In the recent time, China has become very assertive. चाहे आप साउथ चाइना सी की बात करो, चाहे स्पेशली बे ऑफ बंगाल रीजन की बात करो, इंडो पैसिफिक रीजन की बात करो, चाइना हैज बिकम वेरी असर्टिव. और एक जो चाइना का वन ऑफ द मेन टूल ऑफ चाइना इन दिस एरिया इज
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स, जहां पे चाइना इज फंडिंग अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन दीज कंट्रीज। तो अगर हम बिम्स्टेक की बात करते हैं, एवरी मेंबर ऑफ बिम्स्टेक is part of Belt and Road Initiative except India and except Bhutan. उसके अलावा सारे मेंबर कंट्रीज ऑफ द बिम्स्टेक दे आर द पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स। तो जो चाइना का इन्फ्लुएंस है इन डिफरेंट कंट्रीज दैट इज राइजिंग। सो what BIMSTEC does for India, तो वो it helps India to counterbalance, it helps India to increase in influence, that too in a multilateral grouping level। राइट, तो ये चीज यू हैव टू कीप इन माइंड कि दिस इज हाउ नो दिस ग्रुप अलाउज इंडिया टू इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया एज वेल एज साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज। राइट, to counterbalance the rising China influence. Another important thing which you have to keep in mind is that the grouping also aligns very closely to the foreign policy goals of India. For example, neighborhood first policy, all right, look east policy, इनके सारे गोल्स में ये बिम्स्टेक ग्रुपिंग अलाइन होती, बिकॉज इंडिया ऑल्सो वांट अ रूल बेस्ड नेविगेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। ऑलराइट, so this grouping provides for that। All right, India can increase its influence in the region. Strategic depth of India can increase through this grouping, through this grouping। All right, so it also aligns with the foreign policy goals of the India। All right, so that is what the idea। Another crucial aspect जो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, as we have said that the member countries of the BIMSTEC grouping, they are part of South Asia as well as the two countries are part of Southeast Asia। So this grouping act as a, you can say, a strategic bridge between South Asia and Southeast Asia। All right, so different कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, जिससे व्हाट विल हैपन इज देयर विल बी सीमलेस कनेक्टिविटी इन द रीजन, which will promote economic growth, which will promote people to people contact, and which will promote cultural transformation। All right, cultural exchange। So as we have seen in the previous class also, Kaladan multimodal transit transport project, then इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, जिसको फिर अगेन इंक्रीज करने की बात हो रही है साउथ ईस्ट एशिया में। देन वी ऑल्सो हैव बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, दैट इज मोटर व्हीकल इनिशिएटिव्स। एंड अनदर इज बिम्स्टेक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी। राइट, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी होगी इन द रीजन, फ्रैगमेंटेशन उतना कम होता जाएगा। दैट इज वाई देर इज सो मच फोकस ऑन कनेक्टिविटी। ऑलराइट, देर इज सो मच फोकस ऑन कनेक्टिविटी। जो फ्रैगमेंटेशन ऑफ द रीजन है दैट विल रिड्यूस। ऑलराइट, दैट इज वाई देर इज ऑलवेज रेस फॉर कनेक्टिविटी। ऑलराइट, देर इज ऑलवेज रेस फॉर कनेक्टिविटी। So that is another important thing। Another crucial aspect is that BIMSTEC की अगर हम बात करें तो these countries are rich in hydrocarbons, you can say, rich in other natural resources। All right, and one of the very crucial aspects in these are part of Bay of Bengal region, so maritime security is also very crucial aspect। All right, तो रिच रिसोर्सेस कंट्रीज हैं, नेचुरल रिसोर्सेस कंट्रीज हैं। दिस विल हेल्प इन इंडियाज अचीविंग इट्स ब्लू इकोनॉमी पोटेंशियल। ब्लू इकोनॉमी पोटेंशियल, बी इट hydrocarbon related things, be it other
maritime related things. So what it will does, the grouping will help India to realize its blue economy potential. तो ये भी ध्यान रखेंगे कि that is the idea. Another crucial aspect अगर आप बात करो which is also very very important is that this grouping will allow the development of northeastern region of the India. All right, so northeastern region, if you try to see, so if you're seeing the BIMSTEC, so northeastern region will have borders between Nepal, all right, Nepal, Bhutan, Myanmar, and Bangladesh. All right, so these are having the uh, these are the some countries which are bordering the northeastern state. So one of the crucial aspect is जैसे अभी आप देखो, if you are moving from Kolkata to the different northeastern state, that will take much more time. All right, that will take much more time. Let us say if you are moving from Kolkata to, let us say, a port in Bangladesh, and from Bangladesh you are moving to northeastern region. So that is why the grouping will allow, let us say, access to northeastern state, especially let us say Assam, Mizoram, Tripura, to the ports in the Bangladesh region, and so that this port may be utilized for export of goods from these northeastern region. All right. So that is what the idea of ki it will allow them the development of northeastern states. All right. So that is there. All right. So it can play a vital role in the development of northeastern region, all right, by enhancing connectivity, by enhancing market access, and by enhancing energy cooperation. All right, so these are some of the highlights or some of the significance of the grouping for India. अगर इंडिया के अलावा आप बात करिए कि जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनको ये क्या ग्रुप प्रोवाइड करता है, ऑलराइट, फॉर एग्जांपल जैसे बांग्लादेश, all right, so what the group provides, because group is having a population of, let us say, 1.7 billion people, and the combined GDP is close to $4 trillion. All right, तो एक ह्यूज मार्केट प्रोवाइड करता है दीज टू इट्स मेंबर कंट्रीज. फॉर एग्जांपल जैसे बांग्लादेश के लिए, ऑलराइट, बांग्लादेश के लिए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मच नीडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो बांग्लादेश, लेट अस से अगर टेक्सटाइल में उसकी स्ट्रेंथ है, दे कैन sell or they can export these textile to the member countries. All right, so that is what the idea. श्रीलंका का क्या है? श्रीलंका is trying to project itself, or it has a goal of becoming a hub for shipment in the Indo-Pacific region. So ये ग्रुप इसको ये एक पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए करता है. राइट, तो दैट इज व्हाट द आइडिया कि श्रीलंका को क्या प्रॉफिट हो रहा है. इफ यू टॉक अबाउट नेपाल एंड भूटान विच आर कंप्लीटली लैंडलॉक्ड कंट्रीज, तो इनके लिए दिस ग्रुपिंग में सर्व एज ए नो एक्सेस टू सी. ऑलराइट, they are having they are able to have access to sea through these groupings. So Nepal and Bhutan ka ye hai. Myanmar and Thailand, all right, Myanmar and Thailand, the South Asian countries, यहाँ पे since they are lot too much dependent on the China के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है. So this group provides an alternative to them. All right, the several other countries, they provide markets for their commodities, they provide demand for their commodities. So वहां पे they can have a sell their products. All right, तो एक आप ये कह सकते हैं कि it is providing them another alternative, another front, all right, apart from China. तो वो आप ओवर डिपेंडेंस ना हो जाओ एक सिंगल कंट्री, दैट इज चाइना. तो दैट इज व्हाट द आइडिया ऑफ बिम्स्टेक कंट्रीज, कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को दिस ग्रुप ऑफर डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेज. नाउ अगर हम इश्यूज की बात करें कि ग्रुपिंग is there,
बट देयर इज लॉट ऑफ इश्यूज। तो ग्रुपिंग का अपना एक पोटेंशियल है, उसको उसको रियलाइज करना है पोटेंशियल को, बट देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज इन ऑर्डर टू रियलाइज दोज पोटेंशियल। एक बार देखते हैं कि हाउ द जर्नी ऑफ बिम्स्टेक हैज बीन, क्या इश्यूज इसमें रह गए हैं। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द पेस ऑफ प्रोग्रेस ओवर द ईयर्स, वो बहुत स्लो रहा है या बहुत स्लगिश रहा है। ऑलराइट, द जर्नी हैज नॉट बीन वेरी स्मूथ और यूनिफॉर्म। जैसे 1997 में इनिशियल ग्रुप वाज फॉर्म्ड, ऑलराइट, बट जो ऑफिशियल चार्टर आया है दैट केम ओनली इन 2022, दैट टू आफ्टर 25 इयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, कि ऑफिशियली हाउ द ग्रुप विल ऑपरेट वो पता चल रहा है आफ्टर 25 इयर्स। तो एक बहुत लंबा समय था इसमें। अनदर थिंग इज दैट जो समिट लेवल मीटिंग्स होती हैं इनकी, दैट हैज नॉट बीन वेरी फ्रीक्वेंट, बहुत इनफ्रीक्वेंट थी। ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि रेगुलर मीटिंग हो रही है। ऑलराइट, तो 1997 से लेके अभी तक देयर हैज बीन ओनली अ 6 समिट लेवल मीटिंग। ऑलराइट, द लेटेस्ट बीइंग इन द April 2025, the sixth summit meeting was in April 2025. So infrequent समिट लेवल मीटिंग है, ऐसा नहीं कि हर समय मिलते रह रहे हैं, और कई बार 4 साल का गैप हो जाता है कि मिलते ही नहीं है। ऑलराइट, तो दैट इज देयर। अनदर क्रूशियल एस्पेक्ट इज कि ग्रुप तो फॉर्म हो गया था 1997 में, बट हेडक्वार्टर कब आया या सेक्रेटरीट कब आया? 2011 में। ऑलराइट, तो दैट इज आल्सो देयर। ऑलराइट, कैसे वर्किंग हो रही है, क्या वर्क कर रहे हैं, दैट इज उसमें बहुत डिफिकल्टी। तो अब सेक्रेटरीट तो बन गया है, बट वहां पे पैसे की कमी है, वहां पे रिसोर्सेज, लोगों की कमी है, ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। तो दैट इज व्हाट द आइडिया, कि वो भी वहां पे इनएडिक्वेट है, फाइनेंसेस आर इनएडिक्वेट, मैन पावर इज इनएडिक्वेट। तो इन सब की वजह से देयर इज वेरियस इश्यूज। तो दैट इज वन थिंग इज देयर। अनदर क्रूशियल एस्पेक्ट, जो एक यूनिक फीचर है बिम्स्टेक का, कि इंटर रीजन और इंट्रा ट्रेड, द ट्रेड अमंग द बिम्स्टेक कंट्रीज, वो बहुत कम है। ऑलराइट, इट इज वेरी लो, दैट इज अराउंड 6% to 7%। ऑलराइट, तो ट्रेड विद इन द बिम्स्टेक कंट्रीज इज वेरी लो, एक तो वो इंपॉर्टेंट है। अनदर थिंग इज, अभी तक इवन दो दे आर निगोशिएटिंग विद द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बट अभी तक वो एग्रीमेंट में फाइनल सहमति नहीं बनी है। ऑलराइट, तो द मेंबर कंट्रीज आर नॉट हैविंग अ फाइनल एग्रीमेंट ओवर द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक अपने ग्रुप में तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बट डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द बिम्स्टेक आर हैविंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ अदर कंट्रीज। ऑलराइट, तो एक वो है कि अपनी ग्रुपिंग्स में ही आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में फाइनल मोहर नहीं लगा पा रहे हो। ऑलराइट, दैट इज देयर। अनदर क्रूशियल एस्पेक्ट इज दैट अगर आप इंडिया की भी ट्रेड की बात करो विद इन द बिम्स्टेक कंट्रीज, ऑलराइट, तो द परसेंटेज ऑफ एनुअल ट्रेड विथ बिम्स्टेक कंट्रीज एज ए परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल फॉरेन ट्रेड, ऑलराइट, टोटल फॉरेन ट्रेड का कितना परसेंटेज है जो इंडिया ट्रेड कर रहा है बिम्स्टेक कंट्रीज से, दैट इज जस्ट 4%। वो सिर्फ 4% ही है। एंड इट वॉज डबल डिजिट इन अराउंड 1950s, बट उसके बाद चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं। ऑलराइट, तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि इंटर रीजनल ट्रेड की बात कर लीजिए और ट्रेड विद इन द बिम्स्टेक कंट्रीज की बात कर लीजिए, दैट हैज नॉट अचीव्ड इट्स पोटेंशियल। ऑलराइट, उसमें अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ऑलराइट, तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज है। अनदर थिंग, जो अनदर इंपॉर्टेंट इशू है, दैट इज द इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन मेंबर कंट्रीज that hinder cooperation. Alright, that hinder cooperation. तो आपस में complete cooperation नहीं बन पा रहा है member countries का, because there is lot of frictions, bilateral frictions. जैसे मान लीजिए the म्यांमार में रोहिंग्याज are persecuted. Alright,
Rohingya tribes are being persecuted, and then they're migrating to the Bangladesh region. तो illegal migration हो रहा है. That has caused a lot of friction between Bangladesh and Myanmar. तो एक ये इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड नेपाल की बात करें तो देयर हैज बीन डिस्प्यूट्स ओवर सेवरल बॉर्डर पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे काला पानी डिस्प्यूट है. तो इंडिया एंड नेपाल में भी कई बार फ्रिक्शन है. नेपाल में देयर हैज बीन इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना. तो नेपाल कई बार बोलता है भारत से कि अगर आप मेरे साथ सही से व्यवहार नहीं करोगे, आई विल मूव टूवर्ड्स चाइना. तो दैट इज फ्रिक्शन इज ऑलवेज देयर. सिमिलरली जब बांग्लादेश में क्या हुआ, ऑलराइट, after the movements by the youth, which leads to the ouster of Sheikh Hasina, the Prime Minister Sheikh Hasina, and she is now residing in India also. So there has been a tense situation between India and Bangladesh relation. तो ये भी important है. Another crucial aspect is if you take the Myanmar, तो वहां पे the civil war is ongoing. अभी वहां पे किसका रूल है? मिलिट्री जनता का रूल है, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशंस हैं कि दे आर वायलेटिंग द ह्यूमन राइट्स. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स, राइट. अनदर थिंग विच इज देयर इज जैसे बिगेस्ट पार्टनर जो बिम्स्टेक में है दैट इज इंडिया, राइट. दैट इज व्हाट द आइडिया. अब एक इंप्रेशन है जो अदर छोटी छोटी कंट्रीज हैं that India is acting like big brother. वो अपने को impose कर रहा है बिम्स्टेक पे, और let us say India is trying to dominate the बिम्स्टेक bloc. Alright, तो उसके कारण भी जो complete cooperation है among the different countries वो नहीं हो पा रहा है. That is why they are not able to, the bloc is not able to achieve its potential. तो जो इंटरनल फ्यूड है, जो बाइलेटरल फ्यूड है अमंग द कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज, उसके कारण कंप्लीट रीजनल कॉपरेशन नहीं बन पा रहा है. तो दैट इज व्हाट द आइडिया. अनदर क्रूशियल एस्पेक्ट क्या है कि सीमलेस कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है रीजन में. राइट, सीमलेस कनेक्टिविटी बिकॉज बहुत से कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो हैं दे आर बीइंग डिलेड ड्यू टू वेरियस रीजन्स. तो वो फाइनल कंप्लीशन नहीं हो पा रहा, कंप्लीट नहीं हो पा रहे. फॉर एग्जांपल जैसे IMT ट्राइलेटरल हाईवे की ही बात कर ले, वो अभी पूरा नहीं बन पाया है. BBIN मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट की बात कर ले, इवन दो एग्रीमेंट इज देयर बट वो कंप्लीट वे में आ नहीं पाया है. तो जो एक सीमलेस कनेक्टिविटी होती है फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्रेड, फॉर द प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, for the promotion of people to people contract, for promotion of cultural exchange, all right, वो अभी सही से नहीं हो पा रहा है. तो these are some of the very important issues in the BIMSTEC region, all right, BIMSTEC grouping, all right. So these are the things. Another एक और जो crucial aspect है the China factor, the China factor, all right. सिंस की जो बिम्स्टेक कंट्रीज हैं दे आर वेरी मच, हमने जो बात की, दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन चाइना. ऑलराइट, चाइना इज प्रोवाइडिंग देम ह्यूज थिंग्स. ऑलराइट, स्पेशली जब आप देखो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स, व्हाट आई हैव सेड कि अपार्ट फ्रॉम इंडिया एंड भूटान, every country of the BIMSTEC is now part of the China-led Belt and Road initiatives. All right, so China is very assertive. China is very aggressive in these countries. All right, be it Sri Lanka, be it Myanmar, be it Bangladesh, right, be it Nepal. वो सारी जगह बहुत एग्रेसिव हैं एंड चाइना इज ट्राइंग टू रेज इट्स इन्फ्लुएंस, इंक्रीज इट इन्फ्लुएंस. तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है कि एक कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ जो इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट है थ्रू दिस ग्रुपिंग वो नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है. ऑलराइट, सो दिस इज अनदर इशू विद द बिम्स्टेक ग्रुपिंग. अब इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा? हाउ दीज चैलेंजेस विच इज बीइंग फेस्ड बाय द बिम्स्टेक ग्रुपिंग, इसको ओवरकम कैसे करें सो दैट द ग्रुप रियलाइजेस इट्स पोटेंशियल.
so that India realizes the its potential through this grouping. ऑलराइट, जो भी इसकी क्षमता है वो पूरा कर पा रहा है। तो इसमें क्या क्या पॉलिसी रिकमेंडेशंस होगी, क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, एक बार उसको बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं दैट इज इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड ऑटोनॉमी। तो हमें उस पे वर्क करना होगा। ऑलराइट, जैसे हमने देखा कि नो ओनली इन द लास्ट 27 years ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ बिम्स्टेक खाली 6 समिट लेवल मीटिंग हुई है। ऑलराइट, तो बहुत इनफ्रीक्वेंट मीटिंग हो रही है। तो हमें एक एनुअल समिट कैलेंडर फिक्स करना होगा। ऑलराइट, एक नो विच विल नॉट चेंज, एक शेड्यूल अपना फिक्स कर लेना होगा कि मीटिंग, समिट लेवल मीटिंग एवरी ईयर विल मीट लाइक दिस। ऑलराइट, जैसे G20 या एशियान नेशन करते हैं, तो एक समिट मीटिंग एवरी ईयर हमें करनी चाहिए। अनदर इज कि अभी क्या है, वॉलेंट्री बजटिंग है कि थोड़े पैसे दे दीजिए सो दैट ग्रुप माइट बी वर्किंग। ऑलराइट, तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उतनी नहीं है। तो बात क्या कर रहे हैं, मैंडेटरी एनुअल बजटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल मेंबर्स टू इंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द ग्रुपिंग। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ग्रुप माइट बी डिपेंडेंट ऑन द अदर ग्रुप्स, अदर इंस्टीट्यूशंस फॉर द फाइनेंशियल नीड। उसी में हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ बिम्स्टेक डेवलपमेंट फंड। एक डेडिकेटेड फंड होगा, ऑलराइट, विच इज सिमिलर टू एशियान डेवलपमेंट फंड। और ये क्या करेगा, टू फाइनेंस फीजिबिलिटी स्टडीज फॉर प्रोजेक्ट रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल डोनर्स लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर एवरी स्मॉल स्टेप। तो बेसिकली क्या बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हर छोटी चीजों के लिए फाइनेंशियली वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। तो ये जो एक इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथनिंग आएगी, जो हेफ्ट आएगा इंस्टीट्यूशन में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अनदर क्रूशियल फैक्टर जो हम बात कर रहे हैं कि देर इज ह्यूज पोटेंशियल ऑफ इंक्रीजिंग ट्रेड अमंग द बिम्स्टेक कंट्रीज। तो उसको हमें पूरा करना है। उसके लिए सबसे बड़ा चीज है कि वी हैव टू कंप्लीट द निगोशिएशंस ऑन बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसको अर्ली निगोशिएट करके अर्ली कंक्लूड करना होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ऑलराइट, दैट इज वन थिंग। ऑलराइट, अनदर क्रूशियल एस्पेक्ट इज कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट। कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट, ऑलराइट, तो एक ये भी एग्रीमेंट है विच इससे क्या होगा, फ्रॉम वन कोस्ट टू अनदर कोस्ट जो मूव हो रहा है दैट विल मूव इन अ चीपर मैनर। ऑलराइट, टैरिफ फ्री हो जाएगा और लेट अस से रिड्यूस्ड रेट पे मूव कर रहा है बिटवीन द पोर्ट्स। तो इससे भी नो मूवमेंट ऑफ गुड्स विल बिकम नो चीपर। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट है, कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सिंगल विंडो कस्टम्स। ऑलराइट, तो जो कस्टम डॉक्यूमेंटेशन है, जो कस्टम का क्लियरेंस होता है, दैट शुड बी अ सिंगल विंडो। ऑलराइट, बहुत इजी होना चाहिए। तो रिड्यूस द टाइम फॉर कार्गो क्लियरेंस फ्रॉम डेज टू आवर्स। तो जल्दी से क्लियरेंस मिलनी चाहिए जो भी कस्टम या पोर्ट पे एक्सपोर्ट्स के लिए चीजें जा रही हैं। तो what it will lead to, it will lead to more and more trade within the group, more and more trade within the group। अभी हम क्या देखते हैं कि different member nations try to reduce the, let us say, imports from other member nation, and इसके लिए they use a lot of different strategy, let us say non tariff barriers लगा देंगे etc। Alright, so that is why the early conclusion of BIMSTEC free trade agreement is vital, all right, so that inter-regional trade increases. So this is also one of the very important thing कि economic cooperation should increase, all right, trade within the group should increase, all right, so that is there. Another is कि no, we have to ensure that there is seamless connectivity in the group। तो कोई भी जो गैप है, कनेक्टिविटी गैप है, वो कम करना है, बिकॉज इट विल लीड टू रिडक्शन इन फ्रेगमेंटेशन इन द ग्रुप्स।
ऑलराइट। तो उसके लिए जो भी हम की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उस पे हमें फास्ट ट्रैक करके उसको अर्ली कंप्लीशन करना है या उसको जल्दी से कंप्लीट करना है, ऑलराइट। तो दैट इज व्हाट द आइडिया इसमें। जो भी इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे हमने बात की या कालाधान प्रोजेक्ट की बात की, ऑलराइट, BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट की बात की, वो सारी चीजों को वी हैव टू इंश्योर दैट फास्ट ट्रैक सारी चीज हो रही है। अनदर क्रूशियल एस्पेक्ट जो हम कर सकते हैं दैट इज बिम्स्टेक माइनस एक्स पॉलिसी, कि लेट अस से आउट ऑफ 7 कंट्रीज 5 countries are ready with the agreement. They are saying yes for the agreement, so we may go ahead. All right, that is what was happening with the BBIN. All right, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal motor vehicle agreement जो है, all right, because other countries were not very much ready to this. So that is why this initiative was there. तो एक ये भी तरीका हो सकता है नो कि एक कंट्री इफ दे आर ट्राइंग टू स्टॉल द प्रोसेस, दे आर ट्राइंग टू स्टॉल द प्रोग्रेस, तो वहां पे बिम्स्टेक माइनस एक्स पॉलिसी का हम यूज कर सकते हैं, इस तरीके से एग्रीमेंट को ला सकते हैं। Like another crucial aspect is we need to fast track the BIMSTEC master plan for transport connectivity to integrate the regions logistic. तो that is what कि connectivity among the regions क्यों important है, alright? तो seamless connectivity हो जाएगी, seamless movement हो जाएगा, alright? तो seamless movement of cargoes, seamless movement of goods and seamless movement of the people also, alright? पता चला tourism बढ़ गया आपस में, तो दैट इज हाउ द इकोनॉमिक ग्रोथ टेक प्लेस। तो कनेक्टिविटी अमंग द मेंबर नेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल रिक्वायरमेंट अगर हमें बात करनी है कि हाउ द ग्रुप कैन अचीव इट्स पोटेंशियल। तो दैट इज देयर। अनदर इज सिक्योरिटी कोऑपरेशन वी कैन स्ट्रेंथन, ऑलराइट। तो फॉर एग्जांपल जैसे ऑपरेशनलाइज अ परमानेंट बिम्स्टेक इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म। तो एक बिम्स्टेक इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, एक परमानेंट होना चाहिए कि बिम्स्टेक इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म, सो दैट बिकॉज एज यू नो दैट गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल, सो थाईलैंड के पास गोल्डन ट्रायंगल, तो अ लॉट ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग हैपेंस, सो टू reduce them or to stop them what we require is intelligence sharing mechanism. So that is also there. Another is ki Bay of Bengal region mein they are prone to cyclones etc. So ek institutionalizing humanitarian assistance and disaster relief exercises. आपने देखा होगा कि India has been the first responder in HADR. ऑलराइट, जो भी आसपास की नेबरिंग कंट्रीज है, इंडिया इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, ऑलराइट, चाहे म्यांमार हो चाहे बांग्लादेश हो, यूजुअली इंडिया इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, ऑलराइट। तो उसी को हमें इंस्टीट्यूशनलाइज करना है इनटू अ परमानेंट रैपिड रिस्पांस फोर्स फॉर द बे ऑफ बंगाल व्हिच इज वेरी मच प्रोन टू साइक्लोन, ऑलराइट। तो दैट इज व्हाट द इट वुड सीमेंट इंडियाज पोजीशन और इंडियाज रोल एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन। तो इंडिया क्या बोलता है, इंडियन ओशन रीजन इज जस्ट लाइक माई बैकयार्ड, ऑलराइट। किसी के घर का बैकयार्ड होता है तो दे आर एबल टू दे विल प्रोवाइड द सिक्योरिटी। सिमिलरली व्हाट इंडिया सेज इज कि इंडियन ओशन रीजन इज आवर बैकयार्ड, ऑलराइट। सो वी विल बी द we will be acting as a net security provider, net security provider. So these are some of the things which you can highlight when you are talking about the way forward. एक और important cooperation जो हम बात कर सकते हैं, energy security cooperation, because let's say the countries like Nepal, Bhutan, they have very high potential for hydropower, all right. They have very high potential for hydropower, all right. तो grid connectivity करके there can be seamless transfer of electricity from one country to another. तो एक energy cooperation is again a very important aspect, all right. So operationalizing the BIMSTEC grid interconnection master plan. Another thing can be integrating BIMSTEC into जो इंडिया का एक global initiative है, one sun, one word and one grid initiative of India, all right, to attract green finances for cross border transmission line. तो एक एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड
एस्पेक्ट हो सकता है, दैट ऑल्सो पॉलिसी रिकमेंडेशंस में दैट कैन बी देयर। Right? So these are some of the policy recommendations for the strengthening of the BIMSTEC grouping, कि उस grouping को कैसे और strengthen किया जाए, how the whatever issues they are facing उसको overcome कैसे कर सकते हैं। Right? So that is what the idea. Now, let us say the sixth BIMSTEC summit, which was held in April 2025. All right. So this was held in the Thailand. All right. Sixth BIMSTEC summit. तो थाईलैंड में हुआ था। थीम क्या था इसका? प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन। ऑलराइट, तो दैट इज व्हाट द आइडिया। इसमें कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें रही कि क्या है, पहला तो सबमिट डिक्लेरेशन था, जो हमारा डॉक्यूमेंट था वो बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 डॉक्यूमेंट वाज साइंड। ऑलराइट, तो इट लेज आउट द रोड मैप फॉर कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन। तो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो था बैंकॉक विजन 2030, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस में भी आस्क्ड बैंकॉक विजन 2030। ऑलराइट, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच हैपेंड in this summit was बिम्स्टेक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था विच वाज साइंड। इससे क्या होता है? इट प्रोवाइड्स फॉर नेशनल ट्रीटमेंट एंड असिस्टेंस टू वेसल्स, क्रू एंड कार्गो, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स, जॉइंट शिपिंग कोऑर्डिनेशन कमिटी एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। ऑलराइट, सो जो मैरीटाइम ट्रेड होगा वो भी इससे बढ़ने की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट था दैट वाज साइंड इन दिस समिट। ऑलराइट, अनदर क्रूशियल एस्पेक्ट वाज कि रिपोर्ट ऑफ द बिम्स्टेक एमिनेंट पर्सन ग्रुप कंस्टिट्यूटेड टू मेक रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का इन फ्यूचर व्हाट डायरेक्शंस इट विल टेक, तो एक रिपोर्ट बनाई थी बिम्स्टेक एमिनेंट पर्सन ग्रुप। ऑलराइट, वाज कंस्टिट्यूटेड टू मेक रिकमेंडेशंस। ऑलराइट, कि आगे फ्यूचर में बिम्स्टेक कैसे जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज व्हाट द आइडिया। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी विच हैपेंड इन द सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट। ऑलराइट, अब इसी समिट में व्हाट हैपेंस, व्हाट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अनवील्ड 21 पॉइंट एक्शन प्लान। ऑलराइट, एट द बिम्स्टेक समिट, हाउ टू स्ट्रेंथन द ग्रुपिंग्स। तो इसमें कुछ कुछ देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो एक ये बात कर रहे थे कि टू इम्प्रूव द बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिम्स्टेक बिजनेस समिट एवरी ईयर। राइट, a feasible study on the possibilities of trade in local currency in the BIMSTEC region। तो जो डिपेंडेंसी ऑन डॉलर्स है उसको कम करनी है, तो दैट इज व्हाई ट्रेड इन लोकल करेंसी। तो ये कुछ बातें थी। अनदर बात कर रहे हैं कि पायलट स्टडी टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ बिम्स्टेक कंट्रीज टू शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं जब भी, तो इट इज फिजिकल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं और डिजिटल कनेक्टिविटी की भी बात कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। तो कनेक्टिविटी बिटवीन इंडियाज यूपीआई एंड पेमेंट सिस्टम इन द बिम्स्टेक रीजन। तो सीमलेस यूपीआई सिस्टम को वहां पे भी बिम्स्टेक कंट्रीज में भी पहुंचाया जाए। ऑलराइट, तो दैट इज व्हाट द आइडिया। फ्यू मोर थिंग्स, मिटिगेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या बात कर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि प्राइम मिनिस्टर हैज proposed this BIMSTEC Center of Excellence for Disaster Management in India. The center will cooperate in disaster management, relief and rehabilitation. Another crucial aspect was fourth joint exercise between BIMSTEC disaster management authorities will be held India this year. तो ये भी that is also a important point. Alright, prelims में they can ask. तो ये है। Another crucial aspect is holding the first meeting of Home Minister mechanism in India. ये भी propose किया गया है। Then setting up of ground station for manpower training for BIMSTEC countries
manufacturing and launching of nano satellite and use of remote sensing data. Alright, तो ये सारी चीजें बात कर रहे हैं. Then another important thing which you have to keep in mind, Bodhi. Alright, Bodhi. So BIMSTEC for Organized Development of Human Resource Infrastructure Initiative. Alright, तो इसमें क्या बात कर रहे हैं? 300 youth from BIMSTEC countries will be trained in India every year under the Bodhi initiatives. Under the Bodhi initiative. तो ये बात हो रही है. Alright, scholarship to BIMSTEC student in Forest Research Institute of India and Nalanda University. Training program every year for young diplomats from BIMSTEC countries. So diplomats may get training in India. Then Tata Memorial Center will support the training and capacity building in cancer care in BIMSTEC countries. तो ये भी बात कर रहे थे. And another thing is establishment of Center of Excellence for Research and Dissemination in Traditional Medicine and Center of Excellence in India. तो ये कुछ चीजें हैं जो which was proposed by the Honorable Prime Minister. जैसे इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, द बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर इन बेंगलुरु हैज स्टार्टेड वर्किंग, दैट इज देयर, एंड द फास्टर वर्क ऑन इलेक्ट्रिक ग्रिड इंटरकनेक्शन, एनर्जी सिक्योरिटी की भी बात हो रही है. राइट, तो बिम्स्टेक यंग लीडर समिट विल बी हेल्ड दिस ईयर. राइट, एंड बिम्स्टेक हैकाथॉन एंड यंग प्रोफेशनल विजिटर प्रोग्राम विल ऑल्सो बी लॉन्च्ड. ठीक है, तो ये है. Then BIMSTEC Athletic Meet will be held in India this year. That is also there. And the first BIMSTEC Games in 2027 में बात हो रही है कि this should be there in the 2027. And last में few है कि establishment of Sustainable Maritime Transport Center in India. तो इसमें भी बात हो रही है. Then BIMSTEC Traditional Music Festival will be held in India this year. Alright, तो few important points इस 21 action points में जो आपको कुछ ध्यान में रखने हो, because that may be asked in question. Alright, so this was in depth, you can say, what are the things related with BIMSTEC which you should know from the exam perspective. Alright, so I hope ki a few things you might have taken from this video. If any suggestions are there, kindly put that into the comment. Alright, so chalo, thank you, and I will see you in the next video. Thank you.